हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर और आज आप जैसे कि देख रहे हैं रिचा को आप सब लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे। शी इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम और शी इज अ ऑनलाइन आइल्स कोच लिविंग इन पंजाब, चंडीगढ़। और हमारे चैनल के थ्रू बहुत से लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया होगा या अब करेंगे। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गिविंग फ्री IELTS क्लासेस। सो ये कैसे काम करेगा कि वॉट एवर amount you're paying for IELTS, we will be refunding that entire amount to you, which is awesome. तो ये अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, इस चैनल में फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। और शी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ फ्री डेमो क्लासेस, 1 hour डेमो क्लासेस। तो जो लोग भी IELTS के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और whether for study or PR, they can take a free classes and after that they can decide कि उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। End of the day, it is completely free, so which is awesome. And Richa, thank you so much for this initiative, and I'm really thankful to you. Okay, Richa, so thank you so much for joining this channel again. And how are you today? Hi, Shan. I'm absolutely fine. Thank you. And thank you once again for calling me to your channel. I'm really feeling great. How are you? I'm doing great, and thank you for asking. So when it comes to IELTS online classes, does it really help? How it really works? Because still people, they are struggling to get points and they are wasting time on YouTube videos and some websites. So this is the number one question which most of our subscribers, they want to know. Well, I feel yes, online classes are a blessing these days, I would say. Not only this pandemic, if I think from the future perspective also, sooner or later, everything will be online. So we have to, get adapted to it. It is better. The easily we'll get comfortable with it, we'll feel more comfortable, and we'll be able to perform well. And if I talk about my students who are already taking coaching and or who have taken beforehand, they are doing great and they have scored really well. They can check my profile, your subscribers, if they are really very much interested, they can check the scores, and they can also see the testimonials that have been given by my previous students. So yeah, it's going great, I would say. As we all know that IELTS is a testing system, and whenever we are going for the exam, there is a limited time frame, right? In that limited time, we have to manage that entire task. So, as a professional IELTS coach, what do you think? How much time they should spend on each task? Say for practicing, definitely 1.5 hour is needed. For example, if I talk about reading, okay. So firstly, when they will solve the reading, they will have a lot many doubts. कोई question solve नहीं होता है, किसी की strategy अलग होती है. So for that, we need to do the discussion. So discussion goes up till 30 to 40 minutes. And if I talk about writing, so writing maybe again technically it is 1 hour. They have to sit for 1 hour in the exam center. But yes, we have to do the pre-discussion, we have to do the post-discussion, because बिना discussion के, if I'm gonna just check it and let them know, so they will not understand कि उनका major problem कहाँ है. So I have to address each and every query. So again, for writing, I would say that yes, 1 hour 40 minutes is needed. Then it goes for listening. They have to practice. Uska tips and strategies hota hai that I provide in the orientation pehle se hi. And after then, if they face any problem, then definitely I address them. Speaking is technically, again, exam mein it is 12 to 15 minutes. But if I talk about my speaking that I take during the class, it goes up till 20 to 25 minutes, so that they, you know, एक कंफर्ट जोन उनका बन जाए कि हाँ, if I have to speak more, so they should be, used to it. ओके रिचा, सो यू हैव ऑलरेडी हैंडल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन मैं भी पर्सनली जानना चाहता हूँ कि कौन से मॉड्यूल में दे रियली फेस प्रॉब्लम, चैलेंजेस स्कोर करने के लिए। क्योंकि स्पीकिंग तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, स्पीकिंग इज लाइक कॉमन। ओके, उसके अलावा कौन से मॉड्यूल है इन विच दे आर रियली स्ट्रगलिंग एंड फेसिंग चैलेंजेस? Writing is the module. राइटिंग, ओके। Writing is the most difficult module. Again, writing करना is not tough, है ना, but उसमें score करना is really tough. यस तो यस, वो या। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. And if I talk about speaking भी, speaking इतना भी easy नहीं है. For example, like students who are already there in Canada and who have who are habitual of using English in their day-to-day life, उनके लिए तो but still easy. बट हाँ, जिनका थोड़ा सा एटमॉस्फेयर नहीं है, उनके लिए स्पीकिंग भी थोड़ा टफ जाता है. ऑल्सो इन स्पीकिंग, एक्सेंट रियली मैटर्स कि एक्सेंट का इतना ज्यादा नो, मैटर करता है?
No, 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 no. Accent is like you have to be authentic. जो आपका original accent है, it is Okay. better कि we should use that only. Okay. Okay. We cannot So, use fake accent. very common question, PTE versus IELTS, because lot of students, they are messaging that PTE चल जाएगा क्या, PTE ऐसा क्या है उसके अंदर कि they just want to go for PTE, not IELTS. Is it really simple compared to IELTS, PTE? I won't say it's simple, बट हाँ वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है राइट Okay. कंप्लीट Okay. जो आपका टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और उसके जो इफ आई कंपेयर आईएलटीएस विद पीटी सो ऑफ कोर्स पीटी इज लिटिल बिट इजी Okay. बट हाँ स्टूडेंट्स को कभी कभी स्टूडेंट्स को पीटीई भी टफ लगता है Mhm. बट उसमें स्कोर करना थोड़ा इजी है ऑनेस्टली Also PTE में why students are going for PTE, वो इतना ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं? जहां तक मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल PTE इज आई थिंक लिटिल बिट इजी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि देर आर सम कॉलेजेस इन कनाडा, दे आर एक्सेप्टिंग पीटीई, दे आर एक्सेप्टिंग आईएलटीएस आल्सो. ड्यूलिंगो तो इट्स लाइक कंप्लीटली स्टॉप्ड. आई डोंट थिंक कि कोई हाँ कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे डुओलिंगो हो. इज बट पीटीई जैसे फॉर एग्जांपल सेनेका में कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे पीटीई एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन व्हेन दे अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट, आईआरसीसी में ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि दे आर एक्सेप्टिंग पीटी, दे नीड आईएलटीएस एकेडमिक, दे डोंट नीड जनरल, क्योंकि जैसे कि हमने हाँ लास्ट वीडियो जी में भी डिस्कस किया था कि that was a temporary thing which was यस updated by IRCC. Now it is stopped. People who are watching this video, practice on academic, don't go for general, don't go for PT. If you go for PT also, you might get offer letter from some college, but end of the day, when you apply for your study permit, when you apply for your visa, that time you need academic. तो आपने जहां से जर्नी स्टार्ट करी थी, अगेन वहीं से स्टार्ट होगी. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8777 मैजिक स्कोर, जो कि सभी लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, एंड पीपल हु हैव 8777 विद मास्टर्स डिग्री, they have a good chance for express entry. Okay, so 8777 में क्या आप advice देंगे? What tips you want to share with our subscribers? 8777 की टिप यही होगी of course the most common tip they have to practice more and more and of course जो 8777 में जहाँ पे students lack करते हैं writing module and writing is again like scoring 6 or 6.5 still easy for the general student, not for the academic but for general student it is easy but they stick behind like 6.5 पे and 7 उनका score आता नहीं है. So for 7 they have to pay attention to small things. For example, how many collocations they have used, right? What kind of vocabulary they have used, those words are related to the topic or not. किस टाइप के उन्होंने सेंटेंसेस यूज करे हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एवरी सेंटेंस शुड बी देयर एंड व्हाट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, वेदर दे हैव फॉलोड. मींस राइटिंग में 4 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज टास्क रिस्पांस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड ऑफ कोर्स ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसीज. तो ये चारों चीजें जब वो फुलफिल करते हैं देन ओनली दे आर एबल टू स्कोर 7 बैंड्स. सो इट्स नॉट दैट इजी. बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो उसमें नोटिस करता है एग्जामिनर व्हाइल चेकिंग द पेपर. So they have to keep a track of everything and that is not possible without any coach or without any expert because लिखने को तो हर कोई लिख लेता है but हाँ हमने कितना सही लिखा है, कितना accurate लिखा है, that matters. So I don't think इतना problem जाता है जनरल में because जो जनरल के लिए स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी वेल वर्स्ड होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, तो बेसिकली उनका प्रॉब्लम इसी में ही जाता है. Right. And IELTS essay writing tips, if you want to share something. IELTS essay writing tips would be of course again I would say कि they should follow the 4 parameters which are given by the Cambridge, so that they have to follow and अगर ये सारी चीजें वो follow करेंगे तो for sure they will score well and of course practice करेंगे, छोटी छोटी चीजों में ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली आएगा उनका स्कोर. ओके, ये तो मैं भी जानना चाहूंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ टू डू स्किमिंग, कि पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ो क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है. तो वो मुझे तो हेल्प किया था, लेकिन कई लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं स्किमिंग के अंदर. सो हाउ टू डू स्किमिंग? स्किमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी पैसेज पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, राइट, और स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए. Firstly, they should read the question. उसमें से जो important points हैं उसको pick up करें and then they should try to locate it. And if they want to, read the passage first, then
2.5 मिनट्स के अंदर उनके पूरा स्किमिंग एंड स्कैनिंग हो जाना चाहिए, जिसमें दे शुड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट नेम्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, कनेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द टफ वोकैबुलरी विच दे फील कि हाँ ये हो सकता है। तो इस तरीके से वो पहले से ही अगर हाईलाइट करके रख लेंगे, सो इट विल बी रियली इजी फॉर देम टू फाइंड द करेक्ट आंसर्स। Okay, Richa. Fake websites, because a lot of people, they go to these websites, they practice. Okay, और उसके बाद जब वो एग्जाम के लिए जाते हैं तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन ऑल दीज वेबसाइट्स जहाँ पे विच इज नॉट इवन कनेक्टेड टू IELTS एट ऑल। सो व्हाट डू यू थिंक? आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमने उस वेबसाइट में देखा था ऐसे ऐसे करना, और देन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ या ऐसा कोई एक्सपीरियंस? बहुत आए हैं शानू, बहुत आए हैं इनफैक्ट। मतलब फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है बिकॉज वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं। एक होता है ना, लाइक यू कैन ट्रेन अ फ्रेश माइंड इन अ मच बेटर वे, बट कोई अगर पहले से ही थोड़ा बहुत सीख के आता है तो उसको सिखाना मुश्किल होता है। हम्म। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि पहले से सीख के आते हैं, और उनकी जो टिप्स होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, वो कभी कभार अलग सा ही होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पेपर दे के आते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज पहले निकालना और उसके बाद नई चीज उनके माइंड में डालना इज रियली अ टफ टास्क। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ फॉलो करना ही है वेबसाइट से, तो इट इज बेटर कि डायरेक्टली हम ब्रिटिश काउंसिल और IDP की वेबसाइट्स फॉलो करें, जो ऑथेंटिक कहते हैं ना चीजें प्रोवाइड करती है। So या that would be much better rather than going to other websites. व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग, लिसनिंग में रिकॉर्डिंग प्ले होती है वहां पे। आई थिंक इन इंडिया दे यूज हेडफोन्स, कनाडा की IELTS के अंदर दे डोंट यूज हेडफोन, यहाँ पे स्पीकर्स में चलते हैं। तो आई वुड से इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जब आपके पास हेडफोन्स होते हैं तो आप इजीली सुन सकते हो, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज दे प्ले ऑन स्पीकर्स। तो वो एक एडवांटेज है, लेकिन उसमें कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इफ दे मिस कोई लाइन, अगर वो मिस कर देते हैं सुनने में, तो वो पूरा का पूरा, कई लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा उनका जो लिसनिंग का जो टेस्ट है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है, विच इज नॉट ट्रू। समटाइम या if they miss some like one or two line then it's okay, लेकिन they should not, if they like miss one line तो ये उनको पूरा का पूरा छोड़ देना चाहिए। तो उसके लिए क्या टिप्स आप देना चाहोगे कि what you want to share? नहीं, वहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। लिसनिंग इज लाइक, आई वुड से आईएलटीएस एग्जाम इज नॉट ओनली टेस्ट द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, जो कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल भी चेक करता है, हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो अगर एक दो आंसर्स आपके मिस हो गए हैं, आपसे एक दो लाइन मिस हो गई है, तो यू शुड नॉट पैनिक। इनफैक्ट आप आगे का रीड करना स्टार्ट करो, पहले से ही जो आपको बीच में टाइम मिलता है आप पहले से ही अंडरलाइन करके रख दो जो भी आपकी चीजें हैं, सो दैट यू शुड डायरेक्टली कोरिलेट विद द recording which is going on. तो एक दो आंसर छूटना इज नॉट अ बिग डील, यू शुड कंटिन्यू विद द अदर आंसर्स। हाँ, जैसे जैसे वो सुन रहे हैं वैसे वैसे उनको नोट डाउन भी करना है, ऐसा नहीं कि वो सुनते ही रहे। सो वी ऑल आर ह्यूमन, सो वी डू ह्यूमन एरर्स, राइट? तो अगर कोई गलती से मिस भी कर देता है तो आपको डोंट पैनिक, आप उसको लिखें। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही वो रिकॉर्डिंग चल रही है आप अपना लिखना स्टार्ट करें, आंसर्स वहीं पे होंगे, उसी शीट में होंगे, यू जस्ट हैव टू फोकस। तो ये चीजें हैं। ओके, तो जाने से पहले मैं सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि एज यू ऑल नो दैट नाउ वी हैव स्टार्टेड अ फ्री IELTS क्लासेस विच इज ऑसम। कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं IELTS में पॉइंट्स लेने के लिए, तो वी विल ट्रेन यू एंड वी विल रिफंड यू दैट वट एवर यू स्पेंडिंग ऑन योर IELTS क्लासेस। एंड और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि वी कैन प्रोवाइड यू फ्री ICCRC licensed immigration consultants for your visa filing as well, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आप अपने कॉलेज के एडमिशन्स लेते हैं उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए, और उसके बाद वीज़ा फाइलिंग में कुछ ना कुछ गलत वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। मैंने ऑलरेडी एक मेरे फ्रेंड की भी वीडियो बनाई थी। तो नाउ सी व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग अ फ्री IELTS coaching, okay? Whatever money you will spend, we will refund you that money. Second thing is that we will not charge any professional fees for your visa submission when it comes to student visa, and we will provide you licensed immigration consultants from Canada, which is awesome.
So those who wants to get our services for IELTS, they can contact directly to Richa. They can email Richa, and yeah, and for college admissions, they can directly contact us. We will help you to reach your goal. Okay, Richa, thank you so much for your valuable time. And before going, do you want to say anything to our viewers? First of all, Shanu, I would like to thank you that because of you, many of the students approached me and I reported to few of them. And for sure, after looking at this video, many of them will again contact me. And to the viewers, I would say please subscribe to our channel and like this video, share and comment.